27th of July was that fateful evening when gallons and gallons, liters and liters of water gushed into the basement of Rao's coaching institute in Old Rajendra Nagar. And 3 days later, we have Drishti IAS issuing response to this whole scenario. What is Drishti IAS? It is one of the premier coaching institutions where the name Vikas Divikirti also you would have seen making headlines earlier during the month for his comments on a lot of things, be it the governance, be it the polity, be it education system and everything. Why everyone was gunning for Drishti IAS? Because Vikas Divikirti, whom many revere as one of the topmost teachers and mentors who ensures successful entry into the most premier elite services in India, that is the UPSC. Drishti IAS also runs institutions and coaching classes which are placed in the basement, which is illegal. Drishti IAS also takes a lot of money as far as any other IAS institute would do. But whether the facilities given to the students are top notch or not, that also remains questionable. And not just for Drishti IAS, for others also. We have Shivam Jha with us, who has studied in one of the Drishti IAS classes in Karol Bagh in New Delhi, which is in the basement. And that basement office has been sealed. So the question was, the person who speaks so highly or speaks on anything and everything under the sun, why that person, why that institution was silent? What they have mentioned as of now in this letter, Shivam, you have gone through this. Yes, हेल्प अस अंडरस्टैंड जो उन्होंने पॉइंटर्स यहाँ पर बताए हैं yes. वो कहाँ से शुरू होता है, उसका क्या मतलब है? They have tried to explain the governmental, rules having inconsistent, you know. They have found that there are some rules which have the laws, and that is inconsistent. And they have put some names, laws name that like Master Plan of Delhi आइए 2021, हाँ and then National Building Plan, and then another names they have taken. So they have suggested that there are rules which has inconsistency, and they have blamed the DDA, Delhi Development Authority, MCD, and fire department not having consistent rule to follow for their coaching centers. They have requested also government, and they have told the MCD that they whatever they have taken the action is right. Right. So, for the benefit of the viewers, let me read it out. We have the Hindi copy of their press release. It says, कोचिंग संस्थानों से जुड़ी ये समस्या ऊपर से जितनी सरल दिखती है उतनी है नहीं. इसके कई पक्ष हैं जिनके तार कानूनों की अस्पष्टता और अंतर विरोध से जुड़ते हैं. डीडीए, एमसीडी और दिल्ली फायर डिपार्टमेंट के नियमों में असंगति है. देयर इज इनकंसिस्टेंसी इन द रूल्स लेड बाय डीडीए, एमसीडी एंड दिल्ली फायर डिपार्टमेंट. इसी तरह दिल्ली मास्टर प्लान 2021, नेशनल बिल्डिंग कोड, दिल्ली फायर रूल्स और यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज के प्रावधानों में भी काफी अंतर्विरोध है. दिल्ली मास्टर प्लान 2021 को छोड़कर किसी भी दस्तावेज में कोचिंग संस्थानों के लिए स्पष्ट प्रावधान नहीं दिए गए हैं. आशा है कि केंद्रीय सरकार जब रिपोर्ट डालेगी तो उसमें फिर होगा. नाउ लुक एट दिस सिनेरियो. It took three lives. Three lives were snuffed out, and then a premier institution like this, or for that matter, Rao or many other institutions which are there in Old Rajendra Nagar, are waking up to this reality कि हाँ जी देखिए सिस्टम में ही प्रॉब्लम है. What were you doing till now? क्यों आप चला रहे थे? आप अगर आप एथिक्स की बात करते हैं Yes. यूपीएससी में, ये तो अनएथिकल था. आपके एथिक्स कहाँ गए? शिवम. There is one paper in UPSC GS4, that is ethics paper they used to teach, and primarily the UPSC teacher Divikirti sir, he used to teach ethics, and he is the founder of Drishti IAS. दीपक तले अंधेरा बोलते हैं इसको, लगता है. वी कैन से सर, हम बोल सकते हैं. तो ये सवाल ये उठता है कि इन्होंने सजेस्ट किया है, अब गवर्नमेंट को सजेस्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है बनाए 3-4 जोन. गवर्नमेंट शुड क्रिएट 3-4 जोन, एंड दे हैव टू प्रोवाइड द हॉस्टल फैसिलिटी एंड अदर फैसिलिटी, Which is fair enough. I mean, गवर्नमेंट बनाए. हम लोग अभी नोएडा में है. नोएडा में यहीं सेक्टर 62 के आसपास भी बहुत सारे वर्किंग मेंस वुमेन्स हॉस्टल हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए भी हॉस्टल बनाए हैं जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं, और उसमें आप जो एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ सीट्स है उसको दिया जाता है. सवाल ये उठता है कि इससे पहले भी ये स्थिति थी. आप पैसे तो ले ही रहे थे, अट्टालिकाएं आपने बना ही ली हैं. करोल बाग मेट्रो स्टेशन is sponsored by this particular name. Can you believe that? How much money that
Delhi Metro would have got for that they are taking 2 lakhs, minimum charges from the students. from the students, from one students, and they have in one batch 300 students minimum. So you Fair can enough. imagine they are looting the money and they are not providing the security. Again, see, I mean, that's another refrain that we'll be discussing at a different point in time. If yes, they have the quality for sure, but then the question is, if you are throwing the caution and the rules to win, and later on when you are caught napping, then you start ये दुहाई देने लगते हैं आपकी ये ऐसे है ये वैसा है. उन्होंने ये भी कहा है, They are mentioning the 40 years experience of their workers. बिल्कुल मैं उस पर भी आ रहा हूँ, just so that we don't misquote them. I'm reading it out. This whole incident percolated to the fore only because of a rain-related incident. Drishti IAS is giving clearance and सफाई दे रहे हैं वो कि उनके जो बिल्डिंग्स हैं वो फायर रूल्स को फॉलो करते हैं. वर्तमान में हमारी मैनेजमेंट ने फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर का विशेष पद बनाया है, जिस पर कार्यरत अधिकारी नेशनल फायर सर्विसेज कॉलेज नागपुर से पढ़े हैं और उन्हें 14 साल का एक्सपीरियंस है. इसके अतिरिक्त प्रत्येक भवन के लिए एक अधिकारी की जिम्मेदारी होती है. वो 16 बिंदुओं को चेक करके इसकी सूचना बिल्डिंग मैनेजमेंट ग्रुप पर अपडेट करता रहता है. जब बात हो रही है फायर सेफ्टी की, यहाँ तो पानी से समस्या हुई थी, बेसमेंट में तो क्लास ये भी चला रहे हैं, और फायर सेफ्टी में भी मुझे नहीं लगता है, हम लोग वहां पर गए थे 2 दिन से, हम लोग वहां जा रहे हैं, आप भी वहां थे, ये इसलिए तो परिस्थिति है उससे तो यही स्पष्ट होता है कि भाई वहां तो फायर, आप बेशक आपकी बिल्डिंग हो गई, उसके बाहर की स्थिति क्या है. ये इसलिए उन्होंने उठाया ये कदम क्योंकि इससे कुछ दिन पहले ही 2-4 महीने पहले की बात है, संस्कृति IAS है मुखर्जी नगर में, उसके बिल्डिंग में आग लग गई थी और बच्चे 3-3 मंजिला से कूदे हैं. तो उस सिचुएशन के बाद इन्होंने ये जो बता रहे हैं ना, बिल्कुल ये लगता वही है कि उन्होंने इसके बाद ये स्टेप लिया है. They have taken the step afterwards. बिल्कुल हो सकता है. वर्तमान में हमारी मैनेजमेंट में फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर का विशेष पद है. इन्होंने इस बात का मेंशन नहीं किया कि वो पद कब उन्होंने बनाया था. कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो हमें पिक्चर पेंट किया गया, जो हमने देखा वहां पर, शिवम भी हमारे साथ थे, तो ये हमने देखा है इस तरह से कि जो ये सिस्टेमिक एक रॉट है, चाहे वो पैरासिटिकल बिहेवियर कह लीजिए या इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से. वो हमेशा ये कहते हैं कि देखिए बच्चों को डिमांड है तो हम इसलिए यहाँ पर उनको मुहैया करा रहे हैं, ज्यादा संख्या है, हम बेटर कंडीशन दे रहे हैं, इसलिए हमारी फीस भी ज्यादा, और वो इंश्योर भी करते हैं कि बच्चों को UPSC क्लियर हो जाए. तो इस परिस्थिति में वेयर डज दिस बक स्टॉप, ये विशियस साइकिल कहाँ खत्म होता है शिवम? I wanted to add something that Drishti IAS has released this press release, right now published this press release after 3 days when the protesters, the students came out on the road. They tried to, throw the stones on the Drishti IAS, coaching centers. They tried to hit them. They tried to mock them, with the making photos, Then this response came right now. Now you can imagine how insensitive they are. Well, they would have come, after the incident. Well, that's what the whole premise of this discussion is, Shivam, and that's why they knew that people will question this. That's why I mentioned 27th the evening the incident happened. 30th of July is when the press release has come out, at that too in the afternoon. The very first line it says, हमें खेद है कि हमने अपना पक्ष रखने में देरी की. वस्तुतः हम नहीं चाहते थे कि अधूरी जानकारी के आधार पर कुछ कहें. इस देरी के लिए हम हृदय से क्षमा प्रार्थी हैं. They knew it that this question would be asked, that why there was this radio silence from their side, and hence the very first point in this almost 1200 page, 1200 worded press release, they have harped onto that fact. You have been a student there in that area. अब अगर देखा जाए क्या ऐसी बेसिक नेसेसिटी है जो स्टूडेंट्स को वहाँ इमीडिएटली चाहिए? The basic necessity lies in food, and then in going to coaching, the vehicle services. The roads are not properly, there is some water logging everywhere in the Karol Bagh area. Whenever you will go, you will face the water logging. Either it is monsoon, or if not, then even then, drainage systems were not appropriate. So we see every time there is water logging. Sometimes, usually the wires of the electricity, that is also there. So people can lose their, lives from that wire. So there is multiple, problems there. एंड स्टूडेंट्स आर फेसिंग, सभी फेस करते हैं. जब हम लोग भी गए थे तो हम लोगों ने भी फेस किया वही, और जब अभी भी हैं लोग तो वो भी फेस करते हैं. और वो बताते हैं कि यहाँ पे एक और बर्डन है, वो तो अलग खेमा हो जाएगा अगर हम बात करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो रूम लेने जाते हैं, रूम का एक अलग बर्डन है. वहाँ पे ब्रोकरेज
लोग बैठे हैं ब्रोकर्स, वो एक अलग बर्डन है। और उस बर्डन के ब्रोकर्स तो कह रहे हैं कि वहाँ की जो जमीन है वो आपको 80 गज 88 गज की जमीन जो है 2 करोड़ की मिलती है, तो जो उसको खरीदेगा वो उसे 5,000 रुपए पे तो किराए पे लगाएगा नहीं, तो वो तो ही इज सिटिंग ऑन अ लैंड माइन। तो उसके लिए तो सरकार को सर्किल रेट कम करना चाहिए, उसको इंश्योर करना चाहिए, वो तो हो नहीं रहा है। जो इन्वेस्टर वहां अगर पैसे लगा रहा है, बात उनकी भी जायज है, सर तो ये कैसे जो वो कॉस्ट कम कैसे ये जो आएगा? ब्रोकर है ना बीच में, उनको हटाना पड़ेगा। दे हैव टू रिमूव द ब्रोकर। नाउ द डिमांड दे आर दे हैव पुट द 5 डिमांड, द स्टूडेंट्स हु आर प्रोटेस्टिंग, एंड दे हैव पुट द 5 डिमांड, एंड द 5th डिमांड इज कि रिमूव द ब्रोकर्स फ्रॉम द मिडिल। अब वो बोल रहे हैं कि ब्रोकर्स को हटाइए, मेरा और सीधा ऑनर्स का बात करें। ये जो ऑनर हैं, जिनका बिल्डिंग है, मुझे उनसे बात करना है। ये अगेन ठीक है, चलिए, दिस इज अगेन साइक्लिकल प्रोसेस। देयर इज Yes. एन ऐप कॉल्ड नो ब्रोकरहुड, व्हिच मींस दैट दे डोंट टेक ब्रोकरेज इफ दे सजेस्ट यू। देन हाउ डू दे अर्न द मनी? वो आपको हाउस का ही रेंट बढ़ा देते हैं, वहां से उनको ब्रोकरेज मिलता है। तो देयर इज नो वे एज ऑफ नाउ, आई मीन इफ यू टॉक अबाउट फीजिबल सॉल्यूशंस, ब्रोकर्स को हटाना, वहां पर तो कुकुरमुत्ते की तरह ब्रोकर्स आए Yes. हुए हैं, तो कैसे उनको कैसे हटा लीजिएगा? वो प्रोटेस्ट पर बैठ जाएंगे फिर। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें डिमांड और सप्लाई का भी इशू है। इसमें कहीं ना कहीं ये भी मुद्दा आता है कि सरकार को सर्किल रेट्स को फिक्स करना होगा, और स्टूडेंट्स को भी देखना होगा कि वो अगर इन कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो उनका सक्सेस रेट क्या है। आप ही बता रहे थे कि लगभग 2000 बच्चे अप्लाई करते हैं, उनमें से 700-800 बच्चों को सिलेक्शन होता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। 8 लाख लोग 8 लाख 8 लोग लाख अप्लाई करते हैं जी, उसमें से 800 का सिलेक्शन 800 होता का है। सिलेक्शन होता है। और इसमें जो विकास देवकीर्ति सर ने लिखा है, एक और चीज खास है हम्म कि जो रूल्स अभी इन्होंने जिक्र किया है, जिन जिन रूल्स का, उन रूल्स के लिए वो अब आगे वीडियो बना रहे हैं कि सभी स्टेक होल्डर्स को ध्यान में रखकर एक सॉल्यूशन बनाया जाए। हम्म नाउ तो ये पहले नहीं उन्होंने आया कहा है कि जी, हम एक वीडियो बना के देंगे हाँ, इस बारे में, जी, या तो लिखित करें, और उनका कहना आर्टिकल है या कि फिर इस विषय वीडियो। की जटिलताओं को स्पष्ट करने के लिए हम जल्दी ही एक विस्तृत विश्लेषण जारी करेंगे, ताकि सभी विद्यार्थियों व अन्य हितधारकों को, सभी पक्षों को अनुमान हो सके। वो अपनी ही बात बेसिकली हाँ, कह रहे हैं कि हम ऐसा कि हम करेंगे। क्लेरिफाई करेंगे क्या एक्चुअली रूल्स है और रेगुलेशन है, सभी स्टेक होल्डर्स को पता चले। We'll have to see whether Drishti IS can take on the might of MCD, the DDA, and the fire department, and actually practice what they preach is ethics and ethical. That's what which has been found missing in this whole episode of the unfortunate death of 3 students in Old Rajendra Nagar in New Delhi. Don't miss out. Follow One India for real-time updates.